ठीक है, we starting with the tutorial sheet 1 of your NEET section. I've selected some important questions. I'll be doing that. शुरू करेंगे. Hello. Yes. Yes, sir. An AC of 50 hertz and peak value 1 ampere flows in the primary coil of the transformer. अच्छा, जब भी ऐसे बोला है ना, so the current will be in AC. अच्छा, AC फंक्शन आपने पढ़ा है कि I is equal to I naught sin omega t. आपने वीडियो देखा है क्या? Yes, sir. जब भी करंट के बारे में बोला है कि इट इज एन AC फंक्शन, so it is always written as this way, I is I naught sin omega t. चाहे दिया रहे नहीं दिया रहे, को दिया है कि नहीं दिया है, I is always going to remain I naught sin omega t if they tell you it is AC. The mutual inductance between primary and secondary coil is 1.5 hertz Henry. The peak value of EMF multiplying E naught. ये फॉर्मूला आपने सुना ही है, E is equal to m di by dt. E को लिख सकते हैं m d by dt of I. What is I? I naught sin omega t. इसका डेरिवेटिव ले लो. Come on. M I naught omega cos omega t. If you remember, leaving the value of the trigonometrical function, whatever is left, that is the peak value, that is the maximum value. So what will be E maximum or E peak, which is known as E naught, will become M I naught omega. What is M given is 1.5, I naught given is 1 ampere, and omega को लिख सकते हैं 2 pi f, where f is 50. The answer of this will become 150 pi volt. Got it? Hello? Yes, sir. So remember, if they tell you AC current means I का function will remain I naught sin omega t. Okay. Question number 3. The equivalent inductance between 2.4 two inductances is 2.4 Henry when they are connected in parallel. You know, L parallel in case of inductor is L1 L2 upon L1 plus L2. Yes, sir. Which is 2.4 Henry. And when they are connected in series, it is L1 plus L2 is 10. Very simple sum. दो नंबर Yes, sir. इसमें वैल्यू पुट कर लो. So L1 L2 upon 10 will become 2.4. So L1 L2 is going to become 24. Yes, sir. So दो ऐसे नंबर फाइंड करो जिनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा. क्या रहेगा? 6 and 4. 6 and 4. So L1 is 6 suppose और L2 is 4. आपको पूछा गया है बेटा डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम कितना? 2 Henry. I hope everyone is understanding. Simple question. But Okay. it can also be 12 and 2. The difference is not there. Like, Yeah, but that is not there, na? huh. Yes. Like, what if it's there in some other sum like that then? So option A and B, both of them will be there, na beta? ऐसे vague options will not be given only, na? You understand? Question number 6. Question number 6. An electron beam is moving near. Okay, electron beam means what? Current. Hello? Yes, sir. There is no a single electron. This is an electron ka beam. That means current is going in this direction, right? Opposite, yes, sir. Yes, sir. The induced current in the loop. Obviously, there will be no current because this current is constant. So the magnetic field generated by this current carrying wire will also be constant. You have done the sum, right? Hold this in the right hand. Yes, sir. So the magnetic field from down will be dot. Here will be dot.
and here will be cross, but this B is constant, and if B is constant there will be no induced EMF, and there is no induced EMF, so there will be no induced Current. because there is no change in flux. Correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Simple question. So answer is no current. Is everyone comfortable, right? Hello. Yes, sir. Question number 9. A coil of resistance 10 ohms है वो. Resistance is given as 10 ohms. Inductance is given as 5 Henry. Connected to a battery of 100 volt. The energy stored in the coil. What is the energy stored in the inductor? Half Li square. Half Li square. I को लिख सकते हैं E by R. Yes, sir. Maximum current ना. How much is that? E by R. Point 1 joule. इधर पॉइंट 1 नहीं है ना आंसर. सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. कितना आएगा देख लो जरा. ये कितना आता है 10 10 100, तो ये 100 हो गया 2.5 into 100. So 250 joule. ठीक है. ठीक है ना. हेलो. Yes, sir. Same answer. Come on, give me the answer. Current flows from A to B. The direction of the induced current. What will be the answer? None of these. Because this current is constant. Since this current is constant, the magnetic field will also be constant. So since there is no change in magnetic field, the EMF induced will be 0. So induced current will also be 0. This kind of questions are many times asked in the NEET examination. Hello. Okay. Question number 26 is very easy questions are there because okay. What is it telling you? The mutual inductance of the two coils are this much and the flux changes by this much. The current changes by this much. M चाहिए. M का फॉर्मूला क्या है? Yes. बोलो. Mu naught N1 N2 A small by L. No, that is not there in the data. Oh. Data में क्या है? N1 phi1 I2 by I2. Yeah, that formula. Okay. Getting it? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. वो भी सही है. Can I write this as E is M di by dt? Yes. E को लिख सकते हैं बेटा d phi by dt. Yes, sir. dt कैंसिल. d phi का चेंज कितना है? 2 into 10 is to minus 2. M पता नहीं है. di का चेंज कितना है? 0.01. यहाँ से M मिल जाएगा 2 Henry. Getting it? Yes, sir. Please analyze the data and do it accordingly. Getting it, sir? Hello. Yes, sir. आगे बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 30 पर आता है. A coil of 10 raised to minus 2 inductance L दिया है. Carries a current of I 2 sin 100t. वही टाइप का सम है. When the current is half of its maximum value, the induced EMF at that moment. Okay, वो हम लोग देखते हैं. क्या फॉर्मूला है E का? L di by dt. L di by dt. L का वैल्यू 10 raised to minus 2 है. d by dt of this I का फंक्शन अभी किया था ना पहले वाले सम में. Yes, sir. का डेरिवेटिव ले लो फटाफट. कितना हो जाएगा? 100 cos 100t. तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos 100t. ये मिला. Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन मिल गया. बट रुक जाओ भाई. क्या बोल रहे हैं? when the current is half of its maximum value, तो वो टाइम निकालना पड़ेगा. अच्छा, व्हाट इज I का फंक्शन?
Sine. 2 sine 100t. But I need 100t. what? 1 minute. I need I to be half. What is maximum value? 2. 2. 2. I need I to be 1 na? Yes, sir. Yes, sir. भाई I am following the question only. मैं मेरी मर्जी का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. When the current is half, so current I made it half, so it will become half. Sine inverse of this will become 100t. Sine inverse half कितना डिग्री होता है भाई? 30. 30 मतलब पाई बाय 6. 5/6. ये हो जाएगा पाई बाय 600. 100 उधर से आ गया ना. Yes, sir. Yes, अब sir. यही उठा के ई में डाल दो. ई का वैल्यू क्या है? 2 cos 100t. टी की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाय 600. 600. ये पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 कितना होता है? 3/2. 3/2. What is the answer? 3 volts. समझे? ये अच्छा वाला क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है क्या? Can हेलो. you repeat Yes, sir. the second part? Which this part? Yeah, the current half. What is asked in the question? If you see, the current is half of its maximum value. So we need to find the time when the current is becoming half of its maximum value. Can you tell me what is the maximum value of the current in this function? 2 sine omega. No, only 2. That 2 sin omega t कैसे maximum हो सकता है? sorry sir. Current is half of its maximum value. मतलब current का value कितना है? Half of this ना? Yes sir. 1. So it will become half. तो यहाँ से sin inverse half. Sin inverse half is pi by 6. यहाँ से 100 नीचे 600 हो गया. Okay, यही sir. उठा के put it here. Thank you sir. Did you all understand what's happening? Hello? यार मुझे समझ में आ रहा है कि बोलो. Yes, sir. 32 पर आता है. देखो आप लोग हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा यार. मैं वही बार बार if I keep on doing मजा नहीं आएगा ना. EMF induced कितना है? 12 वोल्ट. करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ, ये क्या है बेटा? DI by dt DD. is 48 एम्पियर पर मिनट. पर मिनट में काम थोड़ी चलता है. क्या करने का? 3/6. डिवाइड बाय 60. एम्पियर पर सेकंड हो गया. बराबर क्या? Yes. ये हो गया 0.8. द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. चलो बताओ L ढूंढने का. विच फार्मूला? E equals to L di by dt. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एकदम इजी. E कितना है? 12 and di by dt is 0.8. L यहाँ से आपको मिल जाएगा हेनरी में. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. 0.58 आएगा. देख लेना. 0.58. हाँ जो भी आएगा देख लो ना. ठीक है. 120/8 आएगा. 120/8 कितना होता है? सही कर रहा हूँ ना मैं? Sir, 15 आएगा ना? 15, sir. Answer 15H. 15 है. Yes, sir. Yes, sir. 12 by 0.8. You get 10 also. हाँ ठीक है. सही है. 15. Okay. Which question is this now? Not there. Okay. Now this is a factual question. A relation between M and L. What does M stand for? Mutual inductance. Mutual inductance. And what does L stand for? Self inductance. Self-inductance. तो दो कॉइल है. म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितने कॉइल होते हैं? 2 होते हैं ना. Yes, sir. अच्छा ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक कॉइल यहाँ पर है और दूसरा कॉइल यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कौन से इंडक्टेंसेस पॉसिबल है? अगर करंट इधर चेंज होगा तो इसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर भी सेल्फ इंडक्टेंस आएगा और इसके अंदर भी सेल्फ इंडक्टेंस आएगा. Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ इंडक्टेंस तो होता ही है ना, अपोजिंग इट्स ओन कॉज इन द सेम कॉइल. द रिलेशन बिटवीन M and L is M is equal to K root L1 L2.
where K is called as coupling factor. Okay. M is K root L1 L2. ये इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर. अच्छा, K के वैल्यू अलग अलग होते हैं. अगर कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर वाउंड है तो K का वैल्यू 1 होता है. K का वैल्यू 1 मतलब मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ A इज लिंक्ड विद B. बराबर क्या? Yes, sir. अगर थोड़ा दूर दूर है K is lesser than 1. K लेस हो जाएगा 1. और अगर ऐसे है तो यहाँ पे K 0 है, बिकॉज इसका लिंक इसके साथ में थोड़ी होगा. Yes, sir. Yes, sir. तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ K. कहते हैं हाउ मच कपलिंग टेक्स प्लेस. अच्छा, यहाँ पर K का वैल्यू कितना पकड़ा है उसने? 1 पकड़ा है. देखो ना, Yes. आंसर सी रहेगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है ये. M is root of L1 L2. So the coupling factor will be between 0 and 1 only, no? Yeah, obviously it will be between हाँ. 0 and 1. ये याद रख लेना. क्वेश्चन नंबर 41 पे आता है. अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या था? Q चार्ज minus d phi by r, if you remember. Yes, sir. Hello man, understood or not? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. What is Q? Charge induced. Charge induced. d phi is change in flux. And what does R stand for? Resistance of the coil. Yes, sir. And minus sign comes due to Lenz law. बराबर है क्या? हाँ, sir. यार अभी इससे आगे क्या सिखाऊं मैं? हेलो. Yes, sir. Yes. ये कहाँ से आता है वो भी आपको पता है. पहले लेक्चर में हमने ये पूरा प्रूफ किया है. बराबर Yes, क्या? sir. So 42. once again, can you go back? Done, sir. मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. नीट वाले बहुत कम लग रहे हैं, जेई वाले आंसर दे रहे हैं. यार आप लोगों का लेक्चर है नीट वालों का. 42nd क्वेश्चन, प्लीज आंसर. अ कॉइल ऑफ दिस मच हेनरी, एल का वैल्यू 40, रेजिस्टेंस कितना दिया? 8 ohms. एंड अ टर्मिनल टू अ बैटरी ऑफ कितना वोल्टेज? 2 volt. क्या पूछा? टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस एलआर सर्किट. व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट? 1 by LR. एल बाय L आर. by R. L by R. कितना हो गया आंसर? 5 seconds. ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई. इसके आगे तो जाने का सोच ही नहीं सकते वो लोग. मगर इतना तो आना चाहिए ना आप लोगों को. हेलो, यस और नो? प्लीज डू इट. 44th. If the number of turns of 70 centimeter square is 200, क्या है एरिया? एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 70 centimeters. 70 centimeters square. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 200. प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है? 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, which is perpendicular to the plane of the coil. मतलब क्या? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों Parallel. 0 है. बराबर क्या? Yes, sir. The coil is rotated through 180 degree. 180 degree मतलब क्या? Area vector is taken to others. बी तो इधर ही है, बी को थोड़ी चेंज मारेगा. ए का वैल्यू चेंज हो गया पीछे. थीटा कितना हो गया? 180 degree. 180. Then the EMF induced will become what? In how much second he is telling you how much second में ये सब चीज हुआ? 0.1 second में. हेलो, Yes, sir. E को लिख सकते हैं बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी. अब मेरी बात सुनो सब लोग, अभी कैसे प्रूव करेंगे. E को लिख सकते हैं माइनस डी फाई को लिखना है 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई डी टी. Yes, अगर sir. माइनस साइन अंदर गया तो ये क्या हो गया? 5 minus 5 upon dt. अच्छा, इनिशियल फ्लक्स क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला इज एन बी कॉस थीटा. Yes, sir. तो बट थीटा कितना है स्टार्ट में? 0. तो ये हो जाएगा पहले केस में हो जाएगा एन बी.
माइनस ऑफ सेकंड केस में थीटा, सेकंड केस में फाई कितना हो जाएगा? NAB cos 180, that is minus NAB again Yes, sir. by dt. So what will be the answer? Twice NAB by T. हेलो, yes or no? Yes. हेलो, देखो इसका एक Yes, sir. शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर मैं थीटा, whenever theta is rotated, whenever coil is rotated, मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूँ. E will become NAB 1 minus cos theta divided by dt. या तो ये फॉलो करो, phi 1 minus phi 2 divided by, और जब भी 180 डिग्री घूमेगा तो उससे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट इज 2 NAB by dt. हेलो, Yes, sir. अभी वैल्यू डाल दो ना इसमें. Yes, sir. हेलो, इसमें वैल्यू पुट कर लो. Yes, you sir. put the value, you will get 22.4 volt. क्या आएगा? Yes, sir. Are you all understanding what's happening, sir? Hello. Yes. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. This question are we talking about? Transformer question है. If the input voltage of the transformer क्या दिया है? VP 2500 volt. Output current IS 80 ampere. Ratio of number of turns in primary to ratio of number of turns in secondary is 20:1. Efficiency of the transformer is 100%. Efficiency 100% मतलब output power is equal to input power. याद है? Input power. Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछा है? The voltage in the secondary. Which formula to apply? ये कुछ दम ही नहीं है यार. Can I say NS upon NP is VS upon VP? Yes, sir. ये सब टाइम पास है. NS upon NP कितना है? 1/20. VS कितना है? VS पता नहीं है. VP कितना है? 2500. VS का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2500 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया? ये सही है. Option A हो गया. ए हो गया ना आंसर. हेलो, Yes, sir. हेलो, यस और नो? Yes, sir. 48 question. A coil of inductance 300 millihenry. L का वैल्यू कितना है? 300 millihenry. And resistance is 2 ohms है वो. Connected to a voltage of 2 volt. The current reaches half of a steady current in. Okay, मुझे टाइम मांगता है. मजा आएगा. देखो इधर. हेलो, Yes, sir. करंट बेटा, करंट कोई नीट वाला आंसर करेगा. आई ऑल देयर बेटा, नीट वाले? हेलो जिया, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? एलआर सर्किट है. एलआर सर्किट में करंट का ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? कल ही हमने किया था. आई इज इक्वल टू I is equal to I naught sin omega t. Sorry, 1 minus e raised to minus t by tau. Sorry. करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये फॉर्मूला लगेगा. अच्छा, करंट कितना मांगता है हमको? Half steady. Half. कैन आई राइट दिस एज करंट आई नीड एज आई नॉट बाई 2. Yes, sir. आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ एल. टाउ एल तो मालूम है ना, एल बाई आर होता है. अच्छा, ये कैंसिल हो गया. 1 माइनस हाफ उधर से हाफ हो जाएगा. विल बिकम ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ एल. हेलो, Yes, sir. इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा ई रेज टू टी बाई टाउ एल. If I take log on both sides, it will become ln2. It will become t by tau L. So t is going to become tau L ln2. ln2 का वैल्यू होता है 0.693. सर हमको कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे हो आप. और tau L is L by R. इस चीज को बोलते हैं हाफ लाइफ. क्या बोलते हैं इसको? हाफ लाइफ. ये सब करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सीधा हाफ लाइफ याद रखेंगे. हाफ लाइफ का नाम सुना है कभी? Yes, sir. किधर सुना है? कौन से चैप्टर में? केमिस्ट्री में सुना है. Radiation. रेडियो एक्टिविटी. अरे Yes, sir. भाई क्या है? इट इज 0.693 लैम्बडा. याद है? 0.693 बाई लैम्बडा के 0.693 लैम्बडा, जो भी है केमिस्ट्री में. क्या है वो? है ना कुछ? हाँ, sir. जाने दो यार, इधर देखो. हाँ चलो, ये याद कर लेना. इसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ. व्हाट इज हाफ लाइफ का टाइम? 0.693 टाइम्स ऑफ टाउ.
अच्छा अगर ये कैपेसिटर हुआ तो टाउ सी, अगर ये इंडक्टर हुआ तो Tau A. टाउ एल। हेलो, यस और नो? Yes. So half life will become 0.693 tau L, tau L. So tau L is L by R ना बेटा? Yes. Seconds. So whatever is the answer. क्या आंसर है? 0.1 सेकेंड। बोलो। Yes, sir. हेलो, are you all comfortable, right? Yes, sir. Okay. Okay, very nice question. Can I say one conducting U tube can slide inside another? Diagram दिख रहा है सबको? Yes, sir. Maintaining the electrical contact between the tubes. The magnetic field B is perpendicular if each of the tube moves towards each other with a constant speed V. दिख रहा है दो ट्यूब एक दूसरे के अंदर स्लाइड हो रहे हैं। Yes, sir. कितने स्पीड से? V. EMF इंड्यूस्ड कितना रहेगा? अच्छा एकदम आसान सा मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूँ। इधर बात सुनो। Can I consider this to be one tube? ये वाला। और यहाँ पर दूसरे वाली ट्यूब को मैं रॉड मानता हूँ, चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम क्या है? Yes, sir. Yes, sir. इस ट्यूब को हम लोग इमेजिनरीली रोक लेते हैं, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ट्यूब? 2V. 2V. क्या समझ में आ रहा है भाई? भाई समझ में आ रहा है क्या हो रहा Yes, है? sir. Can you Yes, tell me sir. what will be the EMF induced in this rod? BLV? Yes, 2 sir. BLB. Yes, sir. हो गया आंसर। 2BL B क्या है यार? 2BLV हो गया आंसर। हो गया ना? Getting it or not? Yes, sir. ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, सोचने वाला। Getting it? Yes, sir. Okay, 52 क्या क्वेश्चन है? Let me see. डायग्राम बराबर नहीं है। 52. As a result of change in the magnetic flux linked with the closed loop, in the figure the EMF induced is V volt. The work done in taking a charge Q coulomb once round the complete loop. Okay. मुझे पता है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोई बता सकता है किसकी बात हो रही है बेटा? Work done. Work done in taking the charge once round the loop. अच्छा, which loop is this? Close loop. No. देखो मैंने आपको फिर से बेटा तो as a displacement result is एक मिनट, as a result of change in the magnetic field, एक मिनट, यहाँ पर magnetic field है पूरा। हेलो, yes, sir. कह रहे ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई यहाँ पर, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ मतलब ये dV/dt हो गया था, सही है क्या? Yes, sir. ये अपने आजू बाजू क्या सेटअप करेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. अरे बोलो ना भाई, हेलो, यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप ना ऐसे। Yes, sir. We have done one lecture on this. What? अच्छा, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी उसके प्रॉपर्टीज आपको याद है? Was this a conservative field or a non-conservative? Non-conservative field. हाँ, non-conservative field मतलब work done in taking the charge once around the complete circuit was not zero. Yes, sir. अगर ये conservative होता तो काम होता। This is which field बेटा? and इसका फॉर्मूला याद है आपको? टोटल फॉर्मूला क्या था इसका? इंटीग्रेशन ऑफ E bar dot dl bar was the induced EMF. Yes. Hello, was the Induced EMF. induced EMF। मतलब ये पूरा जो लूप है, एक लूप में ओके कितना बनेगा? वोल्टेज कितना बनेगा? E बनेगा। E. हेलो, Yes, sir. यस और नो? E बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कैन आई
ये EMF है बेटा, ये E है, EMF है, ये EMF है, दिस इज E. Okay, can I multiply and divide, multiply on both sides by Q? ये Yes, क्या हो जाएगा? QE dot DL and this will become equal to Q into EMF. EMF को मैं V के टर्म्स में लिखता हूँ, चलेगा क्या? yes, sir. अच्छा, what does QE stand for? Force. And what is force into displacement? Work done. किधर गया? समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अगर यही कंजर्वेटिव फील्ड होता तो वर्क डन कितना होता? क्लोज लूप में 0 होता. 0. बराबर है. Yes, sir. But since this is resulting in dV by dt, this will be an induced electric field. An induced electric field आपको पूरा पता है कि it is a non-conservative field. Yes or no? I have taken one full lecture now. You can't do like this, okay? Please. Yes, sir. 59 sum. An AC generator with coil n number of turns, all of the same area, total resistance R, rotates with a frequency this much. The maximum value of EMF. मैं कर चुका है ये. E का फॉर्मूला आपको मालूम है? E is d phi by DT. dt. d by dt of phi. Phi को लिख सकते हैं बेटा NAB cos theta. Yes, sir. थीटा, थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, या Yes, थीटा sir. थीटा ही लिखो. चलो थीटा ही लिखो. हेलो, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? NAB बाहर. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा? Sin theta. Tan theta. Minus sin sin. थीटा. बट ये भाई ये जो है ये टाइम का फंक्शन है, तो ये ओमेगा टी ही लिखना पड़ेगा ना. Yes, थीटा के sir. साथ मैं डेरिवेटिव कैसे लूंगा मैं? क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रही क्या? Yes, sir. थीटा, थीटा को घुमाने के लिए ओमेगा टी लेना पड़ेगा. दिस विल बी डन इन AC सर्किट. डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल टीच यू. ओके, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा Maybe omega. माइनस Minus साइन. cos sin theta. Omega t. आपको मालूम है साइन या कॉस टर्म को छोड़ के जो भी बचता है दैट इज द पीक वैल्यू. Yes, sir. Yes, sir. Maximum. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? NAB ओमेगा. ओके, हेलो Yes, sir. हेलो. ये वीडियोस में किया है इसी सर्किट Sir, this is the only magnitude, right? के. ओनली मैग्नीट्यूड ना. Okay. अगर आपको ये माइनस साइन लेना है तो वो माइनस साइन उड़ जाएगा अंदर वाला. यस और नो? Yes, sir. तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NAB ओमेगा sin omega t. Getting it or not? Hello. Yes, sir. But this will be which value? Peak value. I hope you all are understanding. Yes, sir. 60th question. कोई दम नहीं है इसमें. चलो बताओ. फ्लक्स का फंक्शन दिया है. E का फॉर्मूला क्या है? D phi by dt. नहीं, माइनस डी फाइव बाई Minus डी. d phi. क्या आंसर में माइनस है, दिख रहा है? Yes, sir. माइनस प्लस ले लेना, मैग्नीट्यूड नहीं है सिर्फ. इसका डेरिवेटिव ले लो ना फाई का. 20t minus 20t माइनस 50. अच्छा, t कितने सेकंड्स पर पूछा है? 50 seconds. 23 से 60 माइनस 50 कितना होगा आंसर? Minus 10. -10. माइनस 10. आंसर ये रहेगा. ये मार्क नहीं करते ना. हेलो. Yes, sir. तो लास्ट टाइम माइनस प्लस साइन आपको समझ गया रहेगा कि कभी लेना है, अभी प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 61. कौन सा सर्किट है डायग्राम में? LR सर्किट है. Yes, sir. तो इंडक्टर L दिया है, R दिया है, E दिया है. इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस गाय एक्ट्स एज whom? Short. शॉर्ट सर्किट. हाँ, शॉर्ट L. सर्किट. Yes, sir. Yes, sir. After a long time, the battery is disconnected after short circuiting point A and B. The current in millisecond. अच्छा भाई, ये after a long time इसमें याद है एनर्जी भर चुका था. Yes, sir. Yes, sir. Half L I square. I not. अब क्या हो रहा है? कह रहा है कि ये जो है इसमें एनर्जी जो भरा हुआ है हाफ एल आई नॉट द होल स्क्वायर, अब इसको आर में शॉर्ट कर दिया, ऐसे बना दिया. तो कह रहा है इसे यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो घटेगा ना.
Yes, sir. ओके तो शॉर्ट करने के बाद में की बात है विच इक्वेशन विल वी फॉलो डीके इक्वेशन बराबर है क्या हाँ, sir. करंट डीके हो रहा है ना व्हाट विल बी द फार्मूला i इज इक्वल टू आई नॉट e raised to minus e e raised to raised minus to t by minus tau t है by tau. वो ग्रोथ वाला फार्मूला अप्लाई मत करना ये डीके वाला फार्मूला अप्लाई होगा बराबर है क्या Yes, sir. Yes, sir. अच्छा व्हाट इज टाउ एल L by R. L by R एल कितना है 100 100 मिली millihenry. ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 3 सेकेंड्स बराबर है क्या T and tau L is same. So that is 1 millisecond. और यहाँ पर कितना मांगा है टी पर 1 मिली सेकेंड पर ही मांगा है Yes, sir. मतलब टी और टाउ एल सेम है तो आई Yes, विल sir. बिकम आई नॉट ई रेज टू माइनस 1 Yes, sir. e raised to minus 1 is 1 by E. 0.37 हेलो 1 by e हाँ आंसर इज इन टर्म्स ऑफ 1 by e सही है क्या Yes, sir. i नॉट by e So because I maximum will be 1 ampere only. i maximum is e नॉट by r Yeah, E by R. That is 100 volt by 100 ohm. So तो e नॉट कितना है 100 by r is 100 हेलो Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था डीके का हेलो ग्रोथ वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना क्योंकि बैटरी को निकाल दिया गया है गेटिंग इट ना Yes, sir. Sixty-three. Two coils of self inductance L1 L2 L2 कितना है okay the mutual inductance between them they are so close that effective flux is completely linked मतलब k का वैल्यू कितना है कपलिंग फैक्टर 1 है 1. m is k times of root L1 L2 done answer is done k का वैल्यू 1 है 2 8 16 हो गया 16 का रूट होता है 4 बराबर क्या 4 मिली हेनरी हेलो Yes, sir. Yes, sir. ये आता है एग्जाम में नीट वालों के लिए पूछा जाता है ओके या तो सीईटी में पूछा जाएगा एमएसटी सीईटी में क्वेश्चन नंबर 74 पर आता है आपने अभी देखा रहेगा किस लोगों ने भी देखा है सेम टाइप के सम है कोई नया सम आया नहीं है हेलो Yes. Yes, खाली एक sir. हमने एम एस रूट के रूट ऑफ L1 L2 और फैक्चुअल क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बाकी सब सम्स उससे ओके किए थे हम लोग ने A conducting circular loop plus placed on a uniform magnetic field B दिया है बेटा 0.04 टेस्ला plane perpendicular to the magnetic field plane perpendicular to the magnetic field means what ये electromagnetic field है पहले theta is 0. हाँ तो मतलब थीटा 0 है area and magnetic field the radius of the loop starts shrinking by this much ये क्या है ये dr by dt है रेडियस का चेंज है Yes, sir. 2 millimeter per second the induced EMF when the radius is given as 2 centimeter अब मेरी बात सुनना सब लोग इधर E का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ d phi by dt Yes. which is d by dt of flux is NAB cos theta Yes, sir. but theta 0 है नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो वो सब बाहर आ जाएगा Yes, sir. थीटा 0 है नंबर ऑफ टर्न्स भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा d by dt of AB. AB Maybe can I write this as d by dt of pi r square B. phi r square into b अब डेरिवेटिव लेना है r के साथ में तो EMF will become IB to pi R. b 2r dr by dt Yes, sir. Yes, sir. 2r dr by dt होता है ना एक्चुअली तो हेलो Yes. ये क्या हो जाएगा पाई बी अरे वैल्यू तो सब तो मिल गया पाई बी बी का वैल्यू कितना है 0.04 टू आर आर एस 2 into 10 raised to minus 2 dB by dt is 2 into 10 raised to minus 3 the answer in volt getting it or not sir hello Yes, sir. this answer will come 3.2 pi microvolt 3.2 pi microvolt yes or Yes, no sir. sir okay ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं
अरे क्या समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes. हाँ भाई. 76. Conducting circular loop is placed on a uniform magnetic field B दिया है, which is plane perpendicular to the loop. मतलब समझ गया कि थीटा 0 है. Theta 0. The radius is loop. ये वही तो है सम. हेलो, पढ़ के देखो. The radius is made to shrink at the rate of 1 millimeter per second. अरे अभी तो किया. हेलो. Yes, sir. Same. Same sum, sir. Same sum है ना. Refer 74. हेलो. Yes, sir. सेम टाइप का सम है. 78 पर आता है. A condenser of capacity. जिसमें चाहिए ये कैपेसिटर वाला सम इधर डाल दिया. हाँ ठीक है ना. तो इनिशियल एनर्जी कितनी रहेगी? Half CV. V1 Yes, sir. The planes of the condenser are connected to an ideal inductor of L. The current through the inductor when the potential difference is V2. So what is the final energy through the capacitor? Half C Half CV2. Half C. V2 square. अच्छा, can I say पहले इसमें एनर्जी भरी हुई, बराबर क्या? Yes, sir. कितनी? Yes, sir. Half CV1. अब जब इधर इसको लगाया इसके साथ इंडक्टर के साथ, तो कह रहा है कुछ करंट फ्लो हुआ यहाँ पर, और एनर्जी जो आ गई वो कौन सी एनर्जी आ गई इसमें? Half CV2. Half C. So can I say difference in the energy इधर भर जाएगा? Yes, sir. अरे व्हाट मैन, हेलो. Yes, sir. Yes, ये sir. टोटल एनर्जी है भाई, समझा? टोटल एनर्जी बटेगा 2 में. Yes. या तो मैं लिख सकता हूँ U initial will become equal to U final plus half Li square. Yes, sir. So इसको Yes, लिख sir. सकते हैं half C V1 square is half C law of conservation of energy half Li square. अगर मिल गया half C V1 square minus V2 square by L root of that will become equal to I. बोलो. Yes, sir. मिल गया ना? किधर है आंसर? सी है क्या? यस और नो? So बराबर answer. है ना? Done. Did you is law of conservation of energy, nothing else? Yes, sir. बोलो. क्वेश्चन नंबर 80 पर आता है. सुनो मेरी बात. Charge Q is uniformly spread over a thin ring of radius r. The ring rotates with a uniform speed omega. ये देखो चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, Q और कह रहा है इसको घुमा रहा है, मतलब चार्ज घूम रहा है. Yes, sir. लो, चार्ज घूमने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट बोलता है. Yes. करंट को लिख सकते हैं Q/T, बट 1/T इज F ना. तो कैन आई से ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल करंट. क्या बोलते हैं इसको? Orbital current. ऑर्बिटल करंट का फॉर्मूला क्या है? QF is the orbital current which is generated. अच्छा, इस करंट के कारण, सपोज इस करंट, ये जो बनेगा करंट, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. Yes, sir. Okay, if you remember MEC, U not I by 2 pi r. if there is a current carrying wire, current carrying loop, current carrying circular coil, बराबर क्या? Yes, sir. Yes, sir. याद है? there is मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा. बाहर की तरफ रहेगा मतलब डॉट बनेगा ना. अरे घुमाओ ना उंगलियां भाई, राइट हैंड की. So inside will be dot and outside will be cross, right? सॉरी, आउटसाइड इज Cross. भाई क्या बात कर रहे हो तुम? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. डॉट इज व्हाट? Inside. डॉट इज No, dot is outside and cross is inside. तो सही तो बनाया मैंने. हेलो. So but Right. inside the loop it will be dot and outside the loop it will be cross, right? अरे भाई ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग, ऐसे ही देख रहे हैं ना. ये जस्ट कर्ल योर फिंगर्स. हाउ कैन यू आर. Sir, Beta- I think he is considering now north and south, sir. हाँ, but I am considering outside only. Outside Yeah, the that's screen what. it is Yeah, dot only. Finished. yeah. Okay, We are ये seeing ठीक from है. one side, na only. यहाँ से Observer, देखो na. ये ठीक है. Oh, okay. Getting it? ये चीज है. Yes, understood. एक मिनट. ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा? At the, can anyone tell me what is the magnetic field at the center of the coil? B center.
mu naught I by 2 pi r, where r is the radius. क्या बोलेगा? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर इज नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर भाई. म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर. स्ट्रेट कंडक्टर जो कल किया था ना हम लोग ने, वो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर था भाई. क्या बात कर रहे हो? हेलो, Yes sir. ये अलग है, याद है ना? Yes sir. Yes, sir. ये सब बैठ के वीडियो देखो भाई. तो व्हाट इज बी सेंटर एट द सेंटर? म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 r. बी सेंटर. ये क्या हो रहा है? नहीं, हाँ, किधर गया? ये है ना म्यू जीरो एन आई. आई कितना है? क्यू एफ Q f. अपॉन करेंगे. क्या है आंसर? क्या है? Yes sir. कुछ तो मिलेगा ना. बी ना, बी नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है ना. Yes sir. Yes, sir. आपको एमईसी थोड़ा जोड़ के देखना पड़ेगा भाई. वीडियो इसलिए मैंने भेजा था कि थियरी तो आ जाए. क्या हो रहा है? So, हाँ sir. एनी डाउट? so your current sir. carrying conductor ना आपने 4 बार सी क्यों लिखा? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. Okay, okay, yes sir, yes. दिस इज So can you सीसीसी ना. explain the Q I naught again? Yes sir, yes sir. ये वाला, ये वाला. Yes sir. देखो बेटा, करंट का फॉर्मूला क्या है श्रेय? E by R. O Q by T. व्हाट इज 1 बाई टी? F. इस चीज Okay को sir, बोलते हैं thank you. ऑर्बिटल करंट. क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल करंट. ऑर्बिटल करंट. ऑर्बिटल करंट जब भी आपको बोलेगा ना, आप लोग याद रख लेना, इट इज क्यू एफ. हेलो, Yes sir. ये सब चीजें वीराव सर अभी शुरू करेंगे आप लोग के साथ में मैग्नेटिज्म, तो यू विल अंडरस्टैंड. हेलो, Yes sir. थोड़ा सी ना थियरी देखा करो. थियरी जो वीडियोस मैंने भेजे, इसका मतलब आप लोगों ने थियरी देखा ही नहीं है. ये सब चीजें मैग्नेटिज्म में थी, पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म के पहले थी. ये मैंने सिखाया था. मैग्नेटिक मोमेंट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एनआईए, एंड एवरीथिंग वाज देयर इनसाइड. प्लीज फास्ट फॉरवर्ड पे रखे मत देखो. ओके, 85 पर आते हैं. कौन सा ग्राफ है? ये जल्दी बताओ यार, कौन सा ग्राफ है? IT graph. आईटी ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा. हाँ sir. Yes, sir. क्यू निकालो हाफ बेस हाइट. हेलो, हाँ sir. 0.2 कूलम. जितना तो मिल गया, इतना तो समझता है. हाँ sir. अच्छा, इधर करंट, इधर कॉइल रेजिस्टेंस आर दिया है. मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स मांगता है. क्यू का फॉर्मूला मालूम है? डी फाइव बाई आर. हाँ और sir. व्हाट आर यू डूइंग मैन? क्यू दिया है 0.2, डी फाइव पता नहीं है. आर कितना है? 10. तो डी फाइव कितना हो गया? 2 वेबर. 2 Weber. भाई बोलो. हाँ sir. एरिया अंडर आईटी ग्राफ विल गिव यू चार्ज ना. Yes sir. एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ इज व्हाट? Charge. because q is it ना. Yes, sir. तो समेशन ऑफ it. समेशन मतलब एरिया निकालने का. ये सब फंडास तो क्लियर ही रह गए भाई. क्लियर है. ट्यूटोरियल 1 इज ओवर. आई एम स्टार्टिंग विद ट्यूटोरियल 2. सही है ना? हेलो, हाँ sir. क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ भाई? नीट वाले मुझे बताओ. हेलो, am I clear with everyone? हेलो. Yes, sir. हाँ भाई, तो ऑन योर वर्ड आई विल गो अहेड. हाँ नाउ. सूजल आज एकदम चुप है. व्हाट हैपेंड? नींद आ रही है बेटा? शारविन, आर यू देयर? यू स्लीपिंग? शारविन इज स्लीपिंग. ओके, राजवी, यू लिसनिंग? Yes, sir, I'm listening. हाँ, यू लिसनिंग. ओके, सब तो है.
ठीक है. Ashna, are you there? Amrisha, these need people. Yes, sir. जाग रहे हो ना आप लोग? हाँ ठीक है, चलो. We'll start with tutorial sheet 2 now. Okay. क्या हो रहा है समझ नहीं. Can you all see? Yes, sir. कितने समझे इसमें? हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं. स्टार्ट करेंगे, चलो. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन नंबर. क्या है आंसर? मतलब मुझे हेल्प करो यार, मजा नहीं आ रहा है. क्या पूछा है? Reduced charge. क्या फॉर्मूला है? अरे बार बार अभी कितनी बार तो सम्स कर लिया हम लोग ने इसके ऊपर. क्या फॉर्मूला है Q का? d5 by r. d5 by मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज d5 by r. बराबर क्या? Yes, sir. Yes, sir. d5 मालूम है क्या? Yes, sir. फ्लक्स 5 into 10 is to minus 4 west. नहीं, बराबर पढ़ो. हैविंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन 5.5 minus Changed. 5. Oh, in this much. मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस मच. कितना चेंज हो रहा है? 0.5 into 10 raised to minus 4. चेंज इज 0.5 है ना. एंड r का वैल्यू Yes, कितना sir. है? 10. क्या हो गया आंसर? ये 5 माइक्रो ना. Yes, sir. सर व्हाट यार, बताओ ना यार प्लीज. Sir, हाँ so here they have written if the magnetic flux changed. So here like मैं पूछ रहा हूँ कि 0.5 होगा कि 5 होगा? नहीं, पहले इतना था ना. ये चेंज 2 होना चाहिए. यहाँ पर हाँ, मिस्ड yes है. sir, चेंज yes 2 sir. होना हाँ. चाहिए. बराबर है क्या? चेंज बाय होगा तो वही लेना है. चेंज 2 होगा तो वो फाइनल वैल्यू रहेगा. गेटिंग है ना? Yes sir. नंबर 9. क्या दिया हुआ? चलो देखो, ये भी सेम ही है. टाइम पास है. वन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ohms is connected to a galvanometer of 160. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया नेट? 200 ohm. 40 plus 160, 200 ohms. Yes or no, sir? Yes, sir. Coil of radius this much, number of turns this much. The coil is placed between the poles of the magnet such that the magnetic field is perpendicular to the coil. इसका मतलब थीटा 0 है. Yes, sir. The coil dragged out of the charge. The charge induced is 32 microcoulomb. Yes, sir. The magnetic field is. कैसे निकालेंगे? Q is d5 by r. Q is, मजा आएगा. देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. Q is d5 by r. बोलो. Yes. अच्छा, कैन आई से d5 will be कितना हो जाएगा? चलो मैं फिर से करता हूँ. इधर ध्यान देना सब लोग. इधर मेरी बात सुनना प्लीज. BDT. एक मिनट. जस्ट वेट. Q is actual formula is minus d5 by r. मेरी बात सुनो बाद में. d5 by r सही है क्या? हेलो. Q is minus 5.2 minus 5.1 by r. हेलो. Yes, sir. अच्छा, फ्लक्स 2 कितना है? 0 है क्योंकि फील्ड के बाहर निकाल दिया. देखो, अरे Yes. पढ़ो ना. इट इज ड्रैग्ड आउट ऑफ द फील्ड. तो फ्लक्स तो रहेगा ही नहीं ना. लिंकेज कहां से हो रहा है? हेलो. Yes, sir. एंड इनिशियल फ्लक्स कितना रहेगा?
NAB cos theta, but theta is 0, right? Yes. तो Q का इंडक्शन कितना हो गया? Surely be B equal to, हेलो, Yes, sir. कुछ डाउट है क्या? No, sir. कुछ डाउट है? हेलो, एनी डाउट प्लीज आस्क. नहीं है, सब समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ये समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये तो पता ही है आपको, फिर मैंने ये चेंज किया यहाँ से. ये स्टेप 12. A square loop of side this much it changed to a circle. शायद ये कर चुके हैं हम लोग. कहाँ किया है मुझे तो याद नहीं है, कर लेंगे. स्क्वायर लूप ऑफ साइड, एक का साइड कितना है? 22 सेंटीमीटर. तो सर एरिया क्या HSC के रहेगा? लेक्चर में. HSC के लेक्चर में किया था. किधर ना किधर आ ही जाएगा. हेलो, Yes, sir. दिस इज एरिया 1. बराबर क्या? इज चेंज टू अ Yes. Sorry. circle. Can anyone tell me how much will be the radius? L upon 2 pi. 4L upon 2 pi. 4L by 2 pi. भाई टोटल लेंथ 4L है ना, उसको ही चेंज किया. Can I say 4L will become equal to 2 pi r? बोलो. Ah, sir. R will become 4L by 2 pi. That is 2L by pi. Yes, sir. So area of this will become pi r square. That is pi into 4L square by pi square. Yes, sir. So 4L square by pi. Yes, sir. एरिया A2 A1 मिल गया. अच्छा, कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है? 0.4 सेकेंड में. 0.4 सेकेंड्स में ये चेंज हो रहा है. बराबर क्या? Yes, sir. EMF इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है? d5 by dt. नो, N ए बी cos थीटा तो चला जाएगा. N B dA by dt. Yes, sir. तो यहाँ पे तो एरिया का चेंज हो रहा है, राइट और नॉट? Yes, sir. And we are interested in the magnitude over here, so it will become n number of turns. कुछ दिया नहीं है तो एक ही पकड़ता है. मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको 0.2 टेस्ला. डीए को लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी, बड़ो वैल्यू माइनस छोटो वैल्यू, कुछ भी करते हैं हम लोग. मैग्नेट्यूड ही लेना है. बिकम 22 into 10⁻⁻² द होल स्क्वायर. A1 माइनस A2 कितना है? 4L स्क्वायर. 4L स्क्वायर, L स्क्वायर कितना रहेगा? 22 into 10⁻⁻² द होल स्क्वायर बाय पाई. Yes, sir. This answer will come in volts. Did you understand? And जो भी माइनस प्लस आएगा उसका ही मैग्नेट्यूड ही लेना है, because you will नहीं. यहाँ पर देखो सब लोग, आंसर Option में कितना है? minus. ऑप्शन में माइनस साइन है. हेलो Yes, sir. हेलो. Yes, sir. तो ऑप्शन में जब भी माइनस साइन है ना, यू हैव टू टेक डेल्टा ए. यहाँ पर जो डी आएगा विल ऑलवेज बी व्हाट सर? Final minus initial. गेटिंग इट और नॉट? हेलो. Yes, sir. ये मैंने गलत दिख दिया है यहाँ पे. मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया ना. Yes, sir. ये उल्टा हो माइनस जाएगा. साइन आएगा. हाँ, यू हैव टू पुट द माइनस साइन आउटसाइड आल्सो. हेलो. Yes, sir. मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना है आप लोग को. तो दिस विल बिकम माइनस आल्सो. दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. मतलब ये हो जाएगा 4L स्क्वायर बाय पाई माइनस व्हाट? ए इनिशियल कितना है? 22 into 10⁻⁻² द होल स्क्वायर. करेंगे Yes, sir. तो पूरा ये बाहर का माइनस साइन भी लेना पड़ेगा आपको. Yes, Yes or sir. no? Because E Yes, का sir. जनरल फॉर्मूला इज माइनस d5 by dt. Yes. चलो आगे बढ़ेंगे. हेलो. आई डोंट थिंक सो कुछ डाउट है इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना Yes, चाहिए. sir. यस. You will get minus 6.6 millivolt. Yes, sir. प्लस और माइनस है सब. अगर प्लस होता तो कोई टेंशन ही नहीं रहता. चलो 14th question. Which of the following can produce maximum EMF? This is actually a sum of AC. अभी रहने दो.
ऑल्टरनेटिंग करंट नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा. हेलो. Yes, sir. ओके, ये हम लोग बाद में कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. A solenoid of 10 Henry and 2 ohms resistance is connected to a 10 volt battery. In how much time magnetic energy will increase to 1/4 of its maximum value? Okay. What is the magnetic energy का जनरल फॉर्मूला? जल्दी बताओ मुझे यार. Half Li square. Yes, sir. And what is the maximum magnetic energy? Half Li naught. Half Li naught square. Now what is given in the question that this magnetic energy should be 1/4 of, ये given है भाई, ये condition है given, बराबर क्या? Yes, sir. तो Yes. क्या मैं लिख सकता हूँ half Li square is 1/4 of half L I naught the whole square. Half L Yes, sir. half L वैसे ही उड़ गया, रूट निकाल दो तो ये हो जाएगा I should be I naught by 2. Hello. Yes, Sir, this is he is talking about half life, sir. He is talking about half life. Hey, बोलो. Yes, sir. हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, बताओ. 0.693 L/R. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 0.693. L कितना है क्वेश्चन में? 10 और R कितना है? 2. तो ये हो जाएगा 5. 0.693 इंटू 5 कितना आएगा? 35 अप्रोक्सीमेटली. बराबर क्या? हेलो. Yes, sir. क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? हेलो. समझा ना सर? एवरीवन अंडरस्टूड राइट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16. An inductance having time constant. Time constant मतलब tau L कितना है? 4. L/R बराबर क्या? Yes. It is cut into 2 equal parts and now connected in parallel. अब मेरी बात सुनो. Cut into 2 parts मतलब क्या? Divided in half. मतलब ये L और R था, ये एक ही था पहले, ये एक था, ये L और R था, बराबर क्या? इसको 2 भाग में कट कर दिया. ये कितना हो जाएगा? L/2 और ये हो जाएगा R/2. याद है ना? R is proportional to L. Yes, sir. रो L by A. Yes, sir. दूसरा भाग भी यही रहेगा. और इन दोनों को किस में लगा दिया? Parallel. अभी कट किया मैंने, कट किया ना 2 भाग में. हाँ sir. Yes, sir. अब इसको फिर 2 कैसे लगाया है? इन दोनों को Parallel. पैरेलल में लगाया भाई. ये L/2 R/2, ये L/2. अच्छा, पैरेलल में रेजिस्टर कितना हो जाएगा? R नेट कितना हो गया? R/4. हाँ, R/4. हेलो. Yes, sir. और L नेट भी कितना हो जाएगा? L/4. But can I say L/R will remain constant? Yes, sir. L/4 into R/4, R net upon L net. So this will become L/R. Yes or no? Yes. तो can I say पहले जो टाइम कांस्टेंट था 4, अब भी वही टाइम कांस्टेंट है कितना? 4 सेकेंड. समझ में आ रहा है क्या? हेलो. Yes, sir. Sir, what are you doing, man? ये अंडरस्टैंडिंग Yes, और sir. नॉट? Yes, sir. कुछ नहीं है, टाइम पास है एकदम. हेलो. Yes, sir. 20th sum. For a solenoid keeping the turn density constant. Turn density मतलब क्या? छोटा n. Yes, sir. छोटो n is kept constant. Length is made half. Cross section, what is doubled? Radius is doubled. Radius. Then the inductance of the solenoid will become what? Okay, इधर ध्यान दो सब लोग. What is self inductance of a solenoid का general formula? U naught n square E by L. मगर हमको आंसर किसके टर्म्स में निकालना है? छोटा n के टर्म्स. Certain. तो can I multiply and divide by L? What man, what? ये कर चुके हैं हम लोग. ये ऐसे कर दूं, ऐसे चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. What is n by L? छोटो n. Yes, sir. फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा?
म्यू नॉट छोटो n स्क्वायर e टाइम्स. सही क्या? Yes sir. Yes, sir. एरिया को लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर. Yes sir. कौन सी चीज चेंज हो रही है? ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. आर कितना टाइम हो गया? डबल. तो डबल का Yes sir. स्क्वायर 4 गुना. Quadruple. Yes sir. एल कितना टाइम हो गया? आधा. Yes. ये नंबर कितना आ जाएगा? ट्वाइस. मतलब L2 बिकम्स ट्वाइस ऑफ L1. Yes. ट्वाइस हो गया मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? 200%. अरे नहीं भाई, 100% बढ़ गया. 100%. 100% increase. 200% हो चुका. Yes बड़ा sir. कितना? बड़ा 100%. Yeah, difference they're asking, na? So Yes, sir. increased by. Yes sir. I hope everyone has understood. हेलो. तो ये सब एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा ऐसे एक एक लाइन वाले ज्यादातर नीट ओके में पूछे जाते हैं. Sir, can you go back one sec? 16. या बेटा या. Done, sir. Twenty-fifth question. An inductance of a solenoid is 5 Henry and resistance is this much. क्या देगा ये? Tau L. अरे बोलो ना. L Yes, कितना है? sir. 5/5. 1 second. If it is connected to a battery of 100 volt, the time taken by the current to reach 9/10 of its maximum value. तो मजा आएगा. ग्रोथ ऑफ करंट की बात हो रही है. ग्रोथ करंट का फॉर्मूला क्या है? I is equal to I naught 1 minus e raised to minus T by t tau L. by tau. Yes, sir. बट I को कितना बनाना है? 9/10. 9/10. tau L एक है ना? Yes. हेलो. Yes, sir. ये कैंसिल, ये कैंसिल. ये क्या हो गया? 1 minus 9/10 ये हो जाएगा 1/10. हेलो. Yes. इसको उल्टा करो. मैं सही कर रहा हूँ ना? Yes. ये क्या हो गया? e raised to minus t का उल्टा किया तो e raised to t हो गया. Yes. हेलो. Yes, sir. ये हो जाएगा ln10 will become t. Yes. Yes. तो 0.693 into log 10 will become t. log 10 कितना होता है? So 2.303 होगा ना? 2.303. हाँ 2.3. Ah, yes, sir. सॉरी. आंसर कितना आ गया? वही तो आ गया. 2.3. Yes. log 10 तो 1 होता है ना. हेलो. Yes sir. करेंगे ना? Yes. और यही डीके में बोलता है तो डीके भी कर सकता हूं मैं. 1 माइनस नहीं आएगा, e रेस टू माइनस आएगा. हेलो. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. तो थोड़ा फटाफट करेंगे बेटा. इन अ So how सर्किट did शो you get 2.303 previous? कन्वर्ट ln टू log ना. Oh, sorry. ln टू log मल्टीप्लाई बाय 2.303 बराबर क्या? Yes, sir. Yes. Multiply by e, na, sir? हाँ. मल्टीप्लाई बाय e नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2.303. Yeah, yes, sir. Sorry, sir. Okay. In a circuit shown in the figure, what is the value of I1 after pressing the key? यार after pressing the key मतलब क्या? Time zero पर. Time goes to 0. Yes sir. Time zero. Inductors Time zero. open. Open. Time zero. Inductor acts as Open Open circuit. inductor Into C by will R. C. क्या हो गया? ये बंद किया. ये 10 वोल्ट का बैटरी. सुनो मेरी बात. ये 6 ohms, ये 8 ohms और ये ओपन है ना. Yes sir. ये तो पूरा सर्किट कुछ काम का ही नहीं है. बराबर है क्या? तो यही Yes सर्किट sir. बनेगा. Yes sir. ये 6 और ये हो गया 14. Yes sir. वोल्टेज कितना हो गया? 10. तो 5/7 ampere. कितना होता है? 5/7. By 7. सही है क्या? Yes sir. Yes, अच्छा, sir. आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलेगा तो So then we have to consider ऊपर का also. इसको शॉर्ट कर देना. Yes sir. Yes, sir. और ये तो निकाल सकते हैं ना. 8 पैरेलल 8 4 होता है. 4 और 6 10 होगा. तो करंट विल बिकम 1 एम्पियर देन Yes sir. एट टाइम Yes, इनफिनिटी. एक रोज की है. रोज अभी 3 दिन से कंटिन्यू सम्स कर रही है. हेलो. Yes sir. Yes, sir.
अरे यार द नीट पीपल अंडरस्टैंडिंग, आप लोग जेई वाले सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई, आप लोग को समझ में आ रहा है नीट वालों को? हेलो? Yes, sir. हाँ भाई, Yes, ठीक है। sir. ओपन सर्किट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आता है। A toroidal solenoid with an air core, an average radius 15 cm. Okay, cross sectional area, number of turns given, ignoring the field variations across the self inductance of a toroid. अभी मेरी बात सुनना बेटा। कोई कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला? टोरॉइड जाने दो। म्यू नॉट n square L E by L. एरिया बाय Length. 2L. एरिया बाय एल। 2L कहां से आएगा? ये तो फॉर्मूला है ना बेटा, फैक्ट है। हेलो? Yes, sir. म्यू जीरो एन स्क्वायर एरिया बाय एल। अच्छा टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड इज अ राउंड सोलेनॉइड। टोरॉइड इज अ Round solenoid. राउंड सोलेनॉइड। तो कैन आई से लेंथ को मैंने 2 पाई आर बना दिया? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, आपको sir. नहीं समझा, अब वीडियो देखना पड़ेगा। बट अगर मैं टोरॉइड की बात करूं तो खाली मॉडिफिकेशन क्या आएगा? Length is 2 pi r. अब देखो सब वैल्यूज दिए है क्या? Yes, म्यू sir. नॉट तो मालूम है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1200। 1200 का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई आर। आर कितना है? रेडियस दिया, एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर। बोलो Yes, sir. Yes, sir. हेनरी। गेटिंग इट और नॉट? हेलो? Yes. सोलोनॉइड ऐसे सीधा होता है ना मेरा बच्चा, Yes, sir. ये एल होता है। अब इसी को अगर मैं गोल कर दूं, ऐसे राउंड कर दूं अगर, 2 पाई आर बन जाएगा। You just replace L with एल विथ 2 distance. पाई आर। एरिया और क्रॉस सेक्शन को रिप्लेस नहीं करना पाई आर स्क्वायर से। Yes. क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। हेलो? I छोटो r square होगा ना. ये दूसरा आर है, ये दूसरा आर है, इसको आर डैश पकड़ो तो पाई एरिया और क्रॉस सेक्शन हो जाएगा Pi r आर dash square. डैश स्क्वायर। हेलो? Yes, sir. कुछ Yes, लोग है sir. ना एरिया और क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, वो रॉन्ग है। हाँ, पाई आर स्क्वायर नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर डैश स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर तो दिया था तो कोई टेंशन ही नहीं है। हेलो? यस और नो? Yes, sir. 35 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड। क्या है फॉर्मूला? अभी तो किया है यार, टाइम पास है एकदम। बोलो क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय 2 पाई बड़ो आर। 2 पाई यहाँ Yes, पर sir. बड़ो आर लिया उसने। अच्छा अच्छा, एरिया को क्या लिख सकते हो? पाई छोटो आर स्क्वायर। Yes, sir. Option हेलो? A. क्या हो गया आंसर? Option A. ए वाला सही है क्या? अच्छा इसमें Yes, छोटो sir. आर बड़ो आर कौन सा है? सब लोग इधर ध्यान देना। दिस इज कैपिटल आर एंड ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल, ये रेडियस छोटो आर है। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके अंदर होता है। ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये कैसे? क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था ना, Yes, sir. Yes, sir. सोलेनॉइड को सर्कल बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कन्फाइंड इन दिस वैल्यू ओनली, दिस Yes. थिंग ओनली। प्लीज रेफर वीडियोस ऑफ MEC। MEC. थ्योरेटिकल वीडियोस है, कुछ जेई वेई कुछ नहीं समझना है। थ्योरेटिकल Yes, वीडियोस sir. तो देखा करो यार। ओके 37 ये है ना, ये दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ स्क्वायर लूप। एक फॉर्मूला मैं देता हूँ, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में MEC में समझेगा जब जेई होगा तभी, अभी समझेगा नहीं आप लोग को। ओके ठीक है, तो भी मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। क्या कह रहे हैं? स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड दिस मच। तो एक स्मॉल स्क्वायर लूप है एंड अ लार्जर स्क्वायर लूप इज देयर। ओके, इसका साइड छोटा एल है, इसका साइड बड़ा एल है। द लूप्स आर कोप्लेनर विद द सेंटर्स कोइंसाइडिंग। बराबर है क्या? हेलो? Yes. द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम will become 2 root 2 mu naught L square by pi L। ओके, अभी फिलहाल याद कर लो, मैग्नेटिज्म में आपको समझ जाएगा।
ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको समझ जाएगा. तो कैन आई से द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L square by L. L square by L. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. अभी फिलहाल आप लोग याद कर लो, आप लोग को समझ जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, बिकॉज उसके लिए आपको स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, 4 स्ट्रेट कंडक्टर, और वो आपको मैग्नेटिज्म में समझ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 40 पर आता है. 40 पर कैन आई से दिस इज द रॉड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड? Yes, What is the sir. formula for rod rotating in a magnetic field? B L square omega by 2. B, Yes, sir. Hello man, understood or not? Option yes, B. sir. किया है ना हम लोग ने. Yes, sir. ऐसे घुमा रहे हैं तो लाइंस तो कटेंगे ना, लाइंस ऊपर है ना, Yes, sir. और नाइफ ऐसे चला रहे हैं, ऐसे कटेगा ना लाइंस. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. और उसका टॉप व्यू अगर आपको देखना है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और रॉड को तो हम ऐसे घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो Yes, कटने वाला sir. है. Yes. What will be the formula? Mu L square B L square omega by 2. Yes, sir. Next question is very simple again. एरोप्लेन, एरोप्लेन का समय. एरोप्लेन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, आपको पता है क्या? Aeroplane. B vertical in LV. LV. हाँ. फिर से रिपीट करते हैं एक बार, देखो सब लोग इधर. 45th. We had discussed in theory, sir. हाँ, we had discussed in a metal aeroplane having a distance of 50 meter between the tip of the wings. तो ये अगर एक एरोप्लेन है, ये दोनों विंग्स है. ओके, विंग्स का लेंथ कितना है? 50 meter. 50 मीटर. इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड, कितना स्पीड है इसका? 360 किलोमीटर पर आवर है. एट अ प्लेस ऑफ द फ्लाइट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच. हाँ, मजा आएगा, सब लोग इधर ध्यान देना. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन प्लीज. Yes. अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी कितना है? 4 into 10 raised to minus 5 Weber per meter. विद एन एंगल ऑफ डिप दिया है, कितना डिग्री दिया है? 30 degree. ये क्या मिलेगा? बी एच. B horizontal. और ये क्या मिलेगा? B vertical. B vertical. BV will become B sin theta Yes, sir. Yes, sir. and BH will become B cos theta. देखो काम आया कि नहीं यार? वो Yes, दिन हम sir. लोग ने सब किया था. Yes, sir. Find the induced potential between the wings of the tip. If the bulb is connected to the edges of the wings, will the bulb light up? मेरी बात सुनो सब लोग, पहले E फाइंड कर लेते हैं, बाद में बल्ब का लाइट वाइट होगा वो देखते हैं हम लोग. E का फॉर्मूला क्या है? अगर ये विंग्स जा रहे हैं तो BV के तो लाइंस ऐसे होते हैं ना बेटा, Yes. तो विंग्स काटेगा ना ये लाइंस को. Yes, sir. Yes. Wings will cut which lines? Vertical. BV. BV line. So what will be the formula for rod cutting the lines? BVLV. BV LV. Yes, sir. What is BV? B sin theta. L is L, V is V. बराबर है क्या? हेलो. Yes, sir. अरे बोलो भाई. Yes. अंडरस्टूड. तो कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? B sin थीटा. B कितना है? 4 into 10 raised to minus 5. Sin 30 होता है हाफ. Yes, sir. L is 50. Velocity is 360 360 into 5 by 18. 18. इसको जरा कैलकुलेट करो. ये 250, 100, 100 into 10 is to minus 5, 10 is to minus 3. बराबर. Yes, sir. और ये कितना हो गया? 20. 25 is 100. 100 मतलब 10 raised to minus 1. 0.1 volt. 0.1 वोल्ट आएगा. Yes, sir. You understanding what's happening? Yes or no? Yes, sir. Okay. And the bulb is obviously going to light up ना. कितना? 0.1 वोल्ट के हिसाब से. Voltage is voltage is there. अरे इधर अगर एक बल्ब ऐसे लगा दिया, बल्ब लगा दिया ऐसे, बल्ब तो जलेगा ना ऐसे, चाहे कितनी भी रोशनी से जले वो. हेलो. Yes, sir. आंसर रॉन्ग दिया है नोट्स के अंदर. आंसर कह रहा है कि फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड द ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड. भाई लाइंस आर कट एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. हां हेलो. Yes, sir. Lines are cut, EMF will be induced. Yes or no, sir? Hello. Yes, sir.
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है। Yes, sir. 46। जो टाइम बाकी है 15 मिनट और करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। द लूप इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड? क्रॉस है ना, डायग्राम Yes, देखो sir. डायग्राम। व्हाट यार, प्लीज Yes, हेल्प sir. मी। Yes, sir. ये जो रॉड है ये काट रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P and Q इज E। P and Q इज कितना कितना? E। कह रहा है हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरी बात सुनो, सब लोग इधर साथ में रहना प्लीज, इधर साथ में रहना, मजा आएगा। अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो एक ये रॉड है, इसको नाम दे देते हैं ना ABCD, ABCD DDEF। तो AB में कितना EMF इंड्यूस होने वाला है? BLV. And can I say this will be the status? Yes, sir. Yes, sir. What man, please tell me. Yes, sir. BC में कितना इंड्यूस होगा EMF? ये तो लाइंस काट रहा ही नहीं है, तो Zero. इधर काट ही EMF नहीं रहा जीरो है। होगा, इधर भी EMF जीरो होगा। सही है क्या? Yes, Yes, sir. अच्छा, ये रॉड का लेंथ कितना है? खाली इतने भाग का, L/4. L/4। तो can I say he will also act like a battery? EMF induced will become BL/4V. Hello. Yes, Yes, sir. And this guy will also BL/4. BL/4V. yes, sir. बोलो ना प्लीज। Yes, sir. अब एक काम करो, आप लोग अपना उंगली लेके जाओ फ्रॉम Q to P। सही है क्या? Yes, sir. VQ minus BLV/4 plus E, that is BLV minus BLV/4 is equal to VP। Yes, sir. क्या हो रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, कितना हो sir. गया? व्हाट इज VQ minus VP या VP minus VQ? BLV/2. देखो ना, इन दो सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा BLV/2। बराबर है। Yes, एंड who is bigger over here? VP is bigger ना, yes, sir. तो पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू P, ये आंसर है। सही है क्या? Yes, sir. अरे ये फंडा समझा क्या आप लोग को? हेलो, Yes, sir. सब ऑप्शन बी ना? P is positive और Q is Sir, sorry minus sorry BL. हाँ ठीक, हाँ ठीक है, B है P is positive with respect to Q। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. P is positive with respect to Q। सही है क्या? So your if it would have come minus BLV, then you would well have taken E, ना? Yes, sir. करेक्ट है क्या? हेलो, Yes. इजी है। या तो एक और एक शॉर्टकट दूं, इससे अच्छा एक शॉर्टकट यहाँ पर है, एक इमेजिनरी रॉड यहाँ पे लगा दो, सबको भूल जाओ। हेलो, Yes, sir. इस पे EMF कितना आएगा? BLV/2. ऊपर का प्लस रहेगा, नीचे का माइनस रहेगा ना, बराबर है? Yes. देखो वही आंसर आ गया कि नहीं? हेलो, Yes. तो वो जो गैप है ना, गैप, उसके अक्रॉस एक इमेजिनरी रॉड फिट करो और आंसर निकाल लो। हेलो, Yes, sir. बिकॉज दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना। अगर आपको पता रहेगा Yes, थोड़ा sir. सी, हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तो बात की थी। Yes, sir. आगे बढ़ेंगे। 52 विच फॉर्मूला? अच्छा, 180 डिग्री जब घुमाता है तो याद है EMF विल बिकम Ice of NAB. NAD/dt। Yes, sir. अरे अभी सिखाया है भाई, अभी हाफ एन आवर पहले। यस और नो सर? Yes, sir. तो अगर हम लोग 180 डिग्री घुमाते हैं तो ये फॉर्मूला, और ये सब दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द आंसर इन वोल्ट्स। यस और नो? ओके, Yes, थीटा sir. इज रोटेटेड, पहले थीटा कितना था? 0, बाद में थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर आप घुमाते हो तो यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर।
I hope Yes, sir. everyone is understanding. Okay? मतलब this is the end result. This is the end result. सब लेक्चर का एंड रिजल्ट है ये, बस और कुछ नहीं है. चलो 59 पर आते हैं. अभी सब सम्स आए. Can you one minute show 45th question? Which one? 45th. या बेटा Yes, sir. Thank you. आंसर रॉन्ग दिया है शीट के अंदर. आंसर दिया है कि नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. हेलो भाई, लाइंस आर कट ना यहाँ पर. हेलो, Yes, sir. लाइंस आर कट तो ईएमएफ तो आएगा ही. पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सिनॉप्सिस के लेक्चर में. चलो आखिर के 2-3 क्वेश्चंस है, चैप्टर खत्म. ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या है यार मेरे पास? हेलो, टर्न्स रेशियो. टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो का क्या मतलब है? NS upon NP. NS अपॉन NP. Yes. 5/1. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. प्राइमरी वोल्टेज 100 वोल्ट. रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग 500 ohms. पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी will become. Okay. अब मेरी बात सुना सब लोग अभी जरा. क्या चाहिए मुझे? Peak value of voltage. पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द. Secondary. कौन सा फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है? कैन आई से NS अपॉन NP, PB VS अपॉन VP. हेलो, Yes, sir. ये तो आना चाहिए ना. ये 5 है. VS कितना है? VS तो पता ही नहीं है. और VP कितना है? 100 है. तो VS कितना हो जाएगा? ये आंसर नहीं है. दिस इज नॉट द It's आंसर. the mean value, average No, value. this is एक मिनट. दिस इज द RMS वैल्यू. Which value? RMS, yes sir. जो भी मेजर्ड. अभी AC चालू करूंगा ना नेक्स्ट वीक तो समझ जाएगा वो Root सब 2 चीज. से multiply. हाँ, ये कौन सा वैल्यू? ऑलवेज मेजर्ड वैल्यू इज व्हिच वैल्यू? RMS. आपके घर में वोल्टेज कितना आता है? सबके घर में कितना वोल्टेज आता है यार? 220. 220 वोल्ट. अगर आप बोलेगे तो वो कौन सा वोल्ट है? वो RMS वैल्यू. RMS. वो RMS वैल्यू. ओके, पीक वैल्यू के लिए ऑलवेज रिमेंबर RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2. Yes, sir. हेलो, वीडियो देखना पड़ेगा. Yes. RMS E नॉट कितना मिला मेरे को पीछे से? कितना मिला था? 500 Yes. बाय √2. अरे सॉरी, क्या ढूंढना था? सॉरी. Wo is No. 500 into root 2. हाँ, So this Viraj sir has also done in Alright. rectifiers. वेरी गुड. चलो अच्छी बात है. तो ये हो गया E नॉट विल बिकम √2 into ERMS. सही है क्या? ERMS कितना है? 500 है. Yes, sir. Yes, sir. मैं उसका थियरी पूरा मैं समझा दूंगा AC में. सिनॉप्सिस में आपको, आप लोग बैठेंगे ना तो पूरा आपको समझ में आएगा कि RMS वैल्यू का Yes. डेरिवेशन कहाँ से आता है. हेलो, Yes sir. Yes, आपको पूरा sir. डेरिवेशन के साथ में बताऊंगा. RMS वैल्यू कहते हैं किसको है, क्यों इन्वेंट किया गया है, वो सब थोड़ा सी थियरी भी देख लिया करो तो अच्छा रहेगा यार. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Sir, can you 66. come to the previous slide? That. दिस वन. Yeah, done sir. Last question. 66th. I hope each and everything you all understood. Okay. Yes, sir. Yes sir. भाई नीट वाले, क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ? हेलो हेलो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ भाई, मुझे कंफर्मेशन मांगता है बिकॉज ओके. क्या कह रहा है? EMF इज 15 वोल्ट. L दिया है, R दिया है, L दिया है, R दिया है. और रेशियो ऑफ द करंट एट टाइम इन्फिनिटी एंड एट टाइम 1 सेकेंड. ओके, टाइम इन्फिनिटी. क्या हो रहा है? ग्रोथ ऑफ करंट की बात हो रही है. Yes, sir. मैन, ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला बताओ. I is equal to I naught e raised to minus t by tau. 1 minus e raised to minus t by tau. सही है क्या? Yes, sir. अच्छा, पहले कितना टाइम बोल रहा है? अरे बोलो. इन्फिनिटी. इसमें इन्फिनिटी वैल्यू डालो, कितना हो जाएगा? व्हाट इज e raised to minus infinity? 0. तो I will Yes. become I naught. Yes, sir. क्या मैं सब गलती कर रहा हूँ? हेलो, No. ये सही है? Yes, sir. फिर कौन से टाइम पे मांगा है? 1 second. 1 second. 1 सेकंड के लिए सबसे पहले L by R निकालो. Yes, sir. तब L is L by R. L कितना है? 5. और R कितना है? 10. तो ये हो जाएगा 10. आधा सेकंड. अब Yes, मजा sir. आएगा. इधर ध्यान दो. At t is equal to 1 second.
मतलब कितने टाइम कांस्टेंट बात कर रहा है? 2 टाइम कांस्टेंट बात कर रहा है, सही है क्या? अरे एक Yes, टाइम sir. कांस्टेंट Yes. आधा है ना, Yes, sir. तो 2 टाइम कांस्टेंट, अगर एक टाइम कांस्टेंट होता तो मजा आता, बट यहाँ पर करना पड़ेगा। आई विल बी आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी इज 1 एंड टाइम कांस्टेंट इज आधा, बराबर क्या? Yes. Yes, तो sir. आई विल बिकम आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2। हेलो Yes, sir. यार, आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, आप आंसर देखो, वो ई रेस टू टर्म्स ही है, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। So divide कर दो ना. एक मिनट, मैं ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। So ये मैं Yes, पूछूं sir. तो Yes. we can find I naught. नहीं बेटा, वो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, इधर ध्यान दो। ये इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द Second case. Second दोनों का case. डिवाइड मार दो। Yes. हो तो गया आंसर। कैंसिल कैंसिल, क्या हो गया आंसर? Option E A. square by E square minus 1. A. Option B. बी ना? Yes. अच्छा. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो एक और एक, विक्ट्री इज डन, ईएमआई हमने कर लिया। अब एसी को एक ही हफ्ता लगेगा, एसी में कोई टाइम लगने वाला नहीं है। हेलो Yes. यार बोलो। देखो, Yes, sir. Yes, sir. 2 लेक्चर सिनॉप्सिस में जाएंगे, एक लेक्चर जेई में जाएगा और एक लेक्चर नीट में जाएगा। अगर ज्यादा चाहिए तो और एक ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर मैं ले लूंगा इफ यू रिक्वायर। हेलो Yes, sir. ओके, तो 2 लेक्चर सिनॉप्सिस में हम लोग पहले तगड़ा सिनॉप्सिस डिस्कस करेंगे, फिर एक लेक्चर जेई का, एक लेक्चर नीट का, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर अगर आपको मांगता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का, तो नेक्स्ट वीक तक आई फील दैट एसी विल आल्सो गेट Over. ओवर। फिर हमारे 3 यूनिट्स ही बाकी है। कौन से यूनिट्स है मालूम है क्या आपको? Wave, वेव्स, Wave, thermo, हीट, and लाइट। light. yes. लाइट। हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके, जो भी मेहनत आप कर रहे हो उस पर डट के मेहनत करते रहो। अभी बस 3 चैप्टर बाकी है, 3 यूनिट्स बाकी है, 3 चैप्टर नहीं है। ओके, तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है? चलो, So थैंक यू वेरी AC मच। Yes. will start tomorrow, no? नो टुमारो, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे। ओके, अच्छा, so tomorrow class है. टुमारो नथिंग, अभी नथिंग। अच्छा, no. 2-3 दिन कुछ Okay, नहीं है, पढ़ाई okay. करो बैठ के, ठीक है? Yes, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Bye. पढ़ाई Thank you, करो आप लोग Bye. बैठ के आराम से। चलो, थैंक यू, Bye. Bye, sir. Thank you. बाय बाय, थैंक यू।